Hello and welcome back to your channel Fix Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So, in the previous video lesson, I have taught you what is a phase and the initial phase constant. And today, I'm going to discuss the phasor diagram. Well, it's very important to understand these concepts. And going further, I'm going to teach you some problems from the JEE and mains and advanced both. And of course, you must see these two videos properly, that phase and this phasor diagram concept. अच्छे से समझ लोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी इस चैप्टर की. ये थोड़ा क्रिटिकल है. दिस इज द मोस्ट critical part of this topic as I've told you in the previous video also. Today again I'm telling you, इसको थोड़ा ध्यान से समझो और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो इसमें, इसको अच्छे से समझने के लिए बच्चों. ठीक है? Alright then, let's go forward and understand the phasor diagram. But before that, let me tell you one thing. If I have, let's suppose, a body which is moving in a circular path with a uniform velocity, that is, it is executing a uniform circular motion, then उससे हम SHM को रिलेट कर पाते हैं. We can relate the SHM with the uniform circular motion. और उसी को आगे बढ़कर हम देखेंगे, उसके डायग्राम को स्टडी करेंगे. उसी डायग्राम को बोलते हैं फेजर डायग्राम. Now, let us say that if a body is executing a circular motion, एक हमारा बॉडी है, uniform circular motion execute कर रहा है. Let's suppose this is your x axis and this is your y axis. ये हमारा x and y axis है बच्चों. ठीक है? If a particle is executing a circular motion, let's suppose कि एक particle start करता है यहाँ से, let's suppose it's starting from here and it moves in this direction. तो किसी एक point पे the body is here. At any time the body is here, and after some time the body would be, let's suppose, here, and so on. It is moving with a constant angular velocity. तो इसका जो angular displacement होगा that is going to be uniform. वो uniformly angle को आपको वहां पे intercept कर रहा होगा. Now, if I take the projection of this body on the y-axis or on the x-axis, आप x-axis पे प्रोजेक्शन लो या फिर y-axis पे लो, उन दोनों केसेस में वो एक SHM को दिखाएगा आपको. और मैं दोनों मेथड्स को आपको सिखाऊंगा. आप उसमें से एक which you like, which you are more comfortable with, आप उसको कैरी ऑन करना. But I'm going to teach you both the method. मैं आपको प्रोजेक्शन ऑन x and the y दोनों सिखाऊंगा. वो मेरी जिम्मेवारी है. Okay, now let us understand one thing बच्चों. अगर मैं एक लैंप यहाँ फिक्स कर देता हूँ, let's suppose if I fix a lamp, या फिर इधर कर दो, थोड़ा और समझने में आसानी होगा. एक लैंप हमने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, which is a source of light. ये हमारा source of light है. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? शैडो. That's the meaning of projection, means shadow. अगर इस पॉइंट का शैडो देखेंगे, हम एक्स एक्सिस पे देख रहे होंगे, तो इसका शैडो कहां बन रहा होगा? टिक 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 टिक, यहां शैडो बन रहा होगा इसका, है ना? ठीक है. और इस पॉइंट का यहां बन रहा होगा. सो यू कैन सी दैट अगर ये बॉडी यहां आता है फ्रॉम दिस पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन जो शैडो है वो इस तरफ मूव कर रहा है. इफ यू लुक एट द शैडो ऑफ दिस वन एंड यू कैन सी दैट इट इज मूविंग दिस वे. तो क्या होगा ना कि ऐसे करते करते व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हियर, द शैडो वुड बी फॉर्म्ड हियर, और फिर से ऐसा वो घूमते रहेगा एंड द शैडो वुड कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर. अगर इसको हम डायमीटर मान लेते हैं व्हिच इज एक्स एक्सिस, तो शैडो जो है वो आपका इस पे ऑसिलेट कर रहा होगा. वो ऐसे जाएगा, इट विल रीच हियर, इट विल रीच टू द मेन पोजीशन, और फिर से वापस से आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर से इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एन SHM ऑन दिस एक्सिस व्हिच इज एक्स एक्सिस फॉर यू एज ऑफ नाउ. तो when a body moves in the circular path, उसका जो प्रोजेक्शन होता है that is going to execute a SHM motion, simple harmonic motion को वो execute करेगा. And you should know that अगर इसका radius, if the radius of the circle is equals to the amplitude, अगर मान लेते हैं, तो यही radius इस SHM का amplitude हो जाएगा, है ना? देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो भैया radius of the circle is going to be the amplitude of the SHM. तो हम क्या समझ सकते हैं कि if a body is executing an uniform circular motion of in radius r, then the projection of that body either on the x-axis or on the y-axis would be SHM with the amplitude equals to the radius of the circle, and the angular frequency omega equals to the angular velocity of the body that is executing the circular motion. तो ओमेगा ही हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दोनों का सेम ही हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं बच्चों. सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर स्पीड हो जाएगा, और SHM में यही ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और हमने इस पे चर्चा ऑलरेडी कर रखा है.
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हम एक सर्कुलर मोशन को एसएचएम से रिलेट कर पाएंगे बहुत ही मजे में। और उस पे जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम, जो कि आपके फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं आपको थोड़ा सा इस समझाने की कोशिश में कि फेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका हम एडवांटेज क्या ले सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन व्हाट आई टॉट इन द प्रीवियस वीडियो लेसन, जो हमने पूरे फंडामेंटल से किए थे, मैं सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा आज, एवरी क्वेश्चन बाय द फेजर डायग्राम, और हम देखेंगे कितना वो जल्दी बन जाता है। सो विच वर क्वेश्चन आई डन इन द प्रीवियस वीडियो लेसन, और अगर जिसने नहीं देखा वो देख ले, उसमें भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सिखाया था आपको, पूरे बेसिक से समझाया था। तो दोज हु हैज नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो दे शुड सी द प्रीवियस वीडियो, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएंगे बच्चों। तो आई एम गोना डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ दिस फेजर डायग्राम। तो पहला बात हम समझते हैं कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और फिर हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑन दी एक्स एक्सिस। मैं दोनों आपको कॉलम बना देता हूं साइड बाय साइड, आपको जो भी पसंद आए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, मोर देन पसंद, आपको जो कन्वीनियंस है, जिसको आप रिलेट कर पा रहे हो जल्दी इजिली, आप उसको फॉलो करना, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हम दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। पहली बात तो है, लेट्स सपोज कि अ बॉडी, अरे यार ये मार्कर्स, हाँ, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, हमारा ऐसे है ना। नाउ आई वांट टू टेक द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, तो उसके लिए फॉर दैट आई नीड टू हैव द लैम्प, द लाइट दिस साइड। हमारा लाइट जो सोर्स है, जो लाइट सोर्स है बच्चों, वो इस तरफ होगा, तभी तो शैडो वाई एक्सिस पे बन रहा होगा, है ना। इतनी बात तो समझ में आती है हम लोग अपन को कि द शैडो शुड बी फॉर्म्ड ऑन द वाई एक्सिस, देन फॉर दैट द लाइट सोर्स शुड बी हियर। अब मान लो कि हमारा बॉडी स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, तो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हमने ऐसा मान लिया, एक ओमेगा से वो मूव कर रहा है, तो इसका शैडो कहां बनेगा, शैडो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बन रहा होगा वो, ठीक है। एट दिस पॉइंट द शैडो वुड बी फॉर्म्ड। लेट्स से एट एनी टाइम t, और t इज इक्वल टू 0 पे मानते हैं कि बॉडी हमने यहां से स्टार्ट करा। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको कि बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है, वो आप कभी भी 0 मान सकते हो, बट उसका जो पोजीशन है वो हमेशा मेन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है। तो मैंने माना, आई हैव अज्यूम्ड दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी हमारा यहां पे है। ओके, देन इफ आई जॉइन दिस विद द सेंटर, आपको दिख रहा होगा ऐसे, अरे भैया ये थोड़ा हटा दो, यू नो, अगर मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया, इस सेंटर ऑफ सर्कल से, तो इट इज गोना मेक सम एंगल, इसी को बोलते हैं बच्चों इनिशियल फेज। द बॉडी एट टाइम t is equals to 0 is here and this is making some angle with the x axis, तो उस एंगल को बोलते हैं इनिशियल फेज कांस्टेंट, जो phi नॉट हमने यहां पे माना है। लेट अस से नाउ द बॉडी इज हियर, इसका शैडो कहां बन रहा होगा बच्चों, द शैडो शुड बी हियर, और इसका देख लो शैडो आपका यहां बन रहा था। You can clearly see that the body started from the main position, started going upward, और इसको हम पॉजिटिव y है, तो इस रेडियस को हम मानेंगे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और इसको मानेंगे बच्चों नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ऑल गुड। नाउ लेट्स से दैट दिस पॉइंट इज मेकिंग सम एंगल, यहां से यहां तक कुछ एंगल बनाता है, वो कितना एंगल होगा इजीली वी कैन फाइंड आउट। तो लेट अस सपोज दिस इज एट एनी टाइम t, and since it is moving with a omega, it is making a uniform circular motion, और हमने UCM पढ़ रखा है इन द सर्कुलर मोशन टॉपिक में ना। तो दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा टी, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुड बी ओमेगा टी, राइट। इट मींस यू कैन एक्चुअली लोकेट दिस ऑब्जेक्ट का पोजीशन विच इज ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ एंगल, और उस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे बच्चों, x, इस केस में क्या लिखोगे, क्योंकि इसका जो SHM है वो y एक्सिस पे हो रहा है, राइट, तो आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi नॉट, और यही तो था फेज हमारा, इनिशियल फेज जो हम देख पा रहे थे इन द प्रीवियस क्लास, यही है वो। दिस इज द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द x एक्सिस, याद रखना ये जो phi है दैट इज एंगल विद द x एक्सिस, एंगल विद x एक्सिस, एंगल विद x एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है ना। Now, when the object reaches at this point, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे हो गया तो इसका शैडो भी इधर ही होगा। It means the body has reached to the positive extreme. अब हम लाइट को इस तरफ ले लेना। Now let us say कि हमारा जो लाइट सोर्स है वो इस तरफ है, हमारा जो लाइट सोर्स है वो इट इज इन दिस डायरेक्शन। अब क्या होगा, इसका फिर से शैडो बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, इसका शैडो बनना स्टार्ट हो जाएगा। Now let's suppose the body has now reached here, तो इसका शैडो जो बनेगा यहाँ पे, यू कैन सी दैट द बॉडी हैज नाउ स्टार्टेड कमिंग डाउन। ये बात अच्छे से समझना बच्चों, यहाँ पे अगर है तो शैडो यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। इफ द बॉडी इज हियर, इट्स शैडो इज अगेन हियर। क्या समझ पा रहे इससे हम कि बॉडी स्टार्ट करता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन दिस वे,
अगर बॉडी हमारा स्टार्ट करता, अगर मैं इस वाई एक्सिस को ऐसे ले लूं तो हमारा ये हो गया पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये आपका हो गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड बच्चों, एंड दिस इज योर मीन पोजीशन। आई जस्ट टुक दिस वाई एक्सिस, मैंने इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री पे और ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। अगर इसको हम वाई एक्सिस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, स्टार्टेड फ्रॉम दैट जीरो मेन पोजीशन, इसको एमपी ले लो, मेन पोजीशन, यहां पे बॉडी था, शैडो यहां पे था, स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इट वेंट टू द राइट एक्सट्रीम, ऐसे गया, इट वेंट हियर, ओके 90 डिग्री फेज, 90 डिग्री बना, एंड देन फ्रॉम हियर इट केम बैक टू दिस थिंग, और शैडो हमारा कहां बन रहा है, बैक टू दिस मेन पोजीशन। तो अगेन हमारा ये पाई, ये टोटल फेज कितना हो गया, पाई बाई 2, और ये फेज हो गया पाई बाई 2। तो टोटल फेज फ्रॉम द मीन बैक टू द मीन कवरिंग वन एक्सट्रीम इज गोना बी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 व्हिच इज पाई। नाउ लेट्स सपोज द बॉडी इज रीच्ड हियर, इसका शैडो कहां बन रहा होगा, बैक टू दिस प्लेस, है ना, समझ में आ रहा है ना। आप फिर बॉडी ऐसे जा रहा है, it is going towards the negative extreme, when it is here its shadow is formed at the negative extreme। now back to the pavilion, अगर ऐसे जाएगा फिर से शैडो से कहां बन रहा होगा बच्चों, this light source is going to act now, शैडो यहां बन रहा है ना, if it is here shadow would be formed here, right, और इस तरह से वो रोटेट करेगा। वापस से हम इसको कहां देखेंगे, मेन पोजीशन पे, और इस टोटल में आपने देख रखा है कि कितना फेज कवर अप करता है वो, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, 4 टाइम्स इट्स गोना कवर अप अ टोटल फेज ऑफ, तो जो टोटल फेज हमारा आएगा दैट इज गोना बी 2 पाई। तो इन वन कंप्लीट साइकिल बॉडी हमारा ऐसे कवर अप करता है। इसको और भी हम समझेंगे, तो हमारा हो गया प्रोजेक्शन ऑन दी वाई एक्सिस, हम वाई एक्सिस को ऐसे लिटाकर इस पे पूरे इसकी हरकत को देखते हैं बच्चों। नाउ द वन पॉइंट इज कि एंगल्स शुड बी टेकन विद द एक्स एक्सिस, क्योंकि रीजन इज, क्योंकि आप जब इनिशियल स्टार्ट करते हो मेन पोजीशन से, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट यहां होता है और मोशन इसका एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। मोशन शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज, मोशन ऑफ पार्टिकल in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बहुत ही क्लैरिटी से फिट होना चाहिए, ताकि जब क्वेश्चंस आए आप उसको मजे में बड़ा ही इजीली कर पाओ, है अच्छी बात है। अब थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। उसके पहले थोड़ा प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस भी देख लेते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस इन व्हेन आई टेक द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस एंड व्हेन आई टेक द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका तो डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। मान लो बच्चों ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस द लाइट सोर्स हैज टू बी हियर, हमारा लाइट यहां पे होना चाहिए, दिस इज गोना बी द लाइट सोर्स, राइट, लाइट सोर्स इधर होगा तभी तो प्रोजेक्शन ऑन इज गोना बी फॉर्म्ड ऑन द एक्स एक्सिस। अब मेरी बात समझो, ध्यान से सुनना। इफ यू वांट द इमेज टू बी फॉर्म्ड at this point which is the main position, क्योंकि इस केस में हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम ए हो जाएगा and this is going to be your positive extreme, अपन को एक्स एक्सिस को कहीं भी दाएं बाएं फिट करने का जरूरत नहीं है। if I want the shadow to be here और लाइट सोर्स हमारा इस तरफ है, आप ही बताओ ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, which is moving in the circular path, ऑब्जेक्ट आपको होना चाहिए यहां पे। आप देख लो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां था इनिशियली, इस पॉइंट पे था, अभी जो हमारा इनिशियल पोजीशन है यहां से स्टार्ट होना चाहिए। इफ आई वांट द शैडो टू बी एट द मेन पोजीशन, नाउ आई वांट द ऑब्जेक्ट टू मूव टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा व्हिच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ शुड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट का प्रोजेक्शन देखो, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस यहां पे होगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस should be here, likewise when the body is here it's going to be at the positive extreme। दूसरी बात, इनिशियल फेज कहां से लेंगे हम, इसमें हमने इनिशियल फेज कहां से लिया था, विथ द एक्स एक्सिस, हमारा इनिशियल फेज था एक्स एक्सिस के साथ था। इसमें देखो क्या होगा, डिफरेंस क्या है, आपको जो इनिशियल फेज है एट टाइम t is equals to 0 हमने मान लिया कि द ऑब्जेक्ट वाज देयर, नॉट फ्रॉम द मीन, इट वाज देयर, देन एंगल्स शुड बी टेकन फ्रॉम द y एक्सिस। बच्चों यही डिफरेंस है प्रोजेक्शन ऑन दी y एक्सिस एंड द प्रोजेक्शन ऑन दी x एक्सिस में। हमारा जो एंगल होगा दैट शुड बी टेकन विथ y एक्सिस, हम एंगल को y एक्सिस के साथ लेंगे एंड यहां पे हमने एंगल को x एक्सिस के साथ लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता अब तक चल गया होगा, एंगल टेकन विथ y एक्सिस, ये हमारा बच्चों बेसिक डिफरेंस है। और जो मोशन होगा दैट शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, motion of object in circular path, motion of object in circular path,
इन जो सर्कुलर पाथ है उसका जो मोशन होना चाहिए दैट शुड बी क्लॉकवाइज, दैट शुड बी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां पे क्या था एंटी, यहां पे क्या है क्लॉकवाइज है। तो अभी देख लो ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, व्हेन इट इज अगेन कमिंग स्टार्ट मूविंग हियर देन इट्स प्रोजेक्शन वुड बी हियर, इट्स प्रोजेक्शन वुड बी हियर। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा वापस से मेन पोजीशन पे आने लगता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर इसका प्रोजेक्शन बच्चों यहां पे होगा और ऑब्जेक्ट इसका जो शैडो है आप दिख रहा है कि आपको ये वापस से मेन पोजीशन पे आ रहा है। And if it is here, it's going to be here, and so on. If it is here, its projection is going to be over here, and the object is moving towards the left extreme. ये सारे बात आप दिमाग से समझ लो अच्छे से, क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूं, आपको पूछने वाला हूं सवाल इस पे, है ना। When the object is here, आपका shadow is moving towards extreme, but the moment it comes in the second quadrant, अगर यहाँ पे आता है, आप देखो इसका सॉरी इसका जो प्रोजेक्शन है, it is forming here. तो from here it started moving rightward. यहाँ पे है, प्रोजेक्शन is here. तो क्या हो गया? Start हुआ from here, went this side, came back to the main position, came to the negative extreme, and now it's going back to the main position बच्चों। तो ये हमारा जो SHM है वो हमारा डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे कर रहा है। इस पॉइंट पे आएगा तो लाइट हम इस तरफ लगा देंगे ना, लाइट शोर्स बी हियर, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन एक्स एक्सिस। थोड़ा फर्क आएगा, आप ऐसे देख लो, इस केस में ऑब्जेक्ट वाज हियर, इस केस में ऑब्जेक्ट इज हियर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो साइन कॉस के बीच का एंगल भी 90 करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो जाता है ना। तो वही केस वही कहानी इसमें है। तो एंगल जो हम चूज करते हैं वो होगा हमारा एक्स एक्सिस के साथ, और इस केस में क्या होगा वाई एक्सिस के साथ होगा। अब बात समझ रहे हो? तो मान लो कि इन एनी टाइम t, at time t is equals to t, the body is here which is making some, let's suppose omega t over here। तो हमारा इसका जो प्रोजेक्शन है बच्चों वो कैसे x पे दिखा रहा है, तो हम लिखेंगे x is equals to a sin omega t plus phi naught। बात समझ में आ रही है ना, यही फर्क है। अब देखो कुछ एंगल्स अगर आप याद कर लो, इफ यू कैन मेमोराइज सर्टेन वैल्यूज ऑफ एंगल्स, वो आपके लिए अच्छा होगा। और आप देखोगे कि इफ यू लुक एट दीस टू केस, यू नो, इसमें क्या है, थोड़ा सा एंगल को हम वाई एक्सिस को शिफ्ट करते हैं और फिर सारे काम को करते हैं, और इस केस में जैसा है वैसा ही है। तो आई एम गोना शो यू वन क्वेश्चन, और उसको मैं दोनों प्रोजेक्शन से सॉल्व करूंगा, एक्स एंड वाई दोनों से करूंगा। उसके बाद वी विल गोना वर्क ऑन विद अ सिंगल प्रोजेक्शन, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस पर कैरी फॉरवर्ड करो। बट एक को मान लो, इधर यू गो विद दिस वन, इधर यू लर्न और यू लर्न विद दिस वन, बट एक से सीखो, बट आइडियाज दोनों के होने चाहिए, ताकि कभी कभी क्वेश्चंस में अगर पूछ देता है कि प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, you should not be clueless कि what the hell it is, you know, you should be having an idea कि okay the projection is on the y axis, it means the initial point should be here, और हमारा body clockwise anti clockwise sorry move करेगा। x axis पे प्रोजेक्शन है तो इनिशियल पॉइंट अगर माने यहाँ पे है, और क्लॉक जो बॉडी है जो which is moving in the circular path should be in the clockwise direction। ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए ही चाहिए, होना चाहिए। अब देखो कुछ एंगल्स इसके बना लेते हैं ना, जो बेसिक एंगल्स आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक एंगल्स जो आपको इफ यू नो दैट, तो हमारा कहानी थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। आप आई बिलीव आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। चलिए अगर हम देखते हैं बच्चों कि बॉडी इज मूविंग ऐसा आराम से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑन दी, हम वाई थोड़ा और डिटेल में समझे तो आप ऐसे देखो, है ना। इनिशियली द बॉडी इज हियर, हमारा यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। अब देखो इसका प्रोजेक्शन इज एट द सेंटर, बॉडी हमारा इस तरफ आ गया, मान लो कि 30 डिग्री पे आ गया, ठीक है। दिस इज द 30 डिग्री π/6। इसका प्रोजेक्शन जो होगा दैट शुड बी हियर। और बच्चों ध्यान रखना इस बात को कि अगर इसको हम a मानते हैं, रेडियस इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड, रेडियस को ही अगर हम एम्पलीट्यूड मानते हैं, देन इफ इट इज π/6 30 डिग्री है, और ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। पहला क्वेश्चन अच्छे समझा रहे हैं ना आपको, ये कितना हो गया π/3 हो गया, π/3 हो गया, 630 60 90। व्हाट डू आई नीड, आई जस्ट नीड दिस लेंथ। अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा मेन पोजीशन है बच्चों, दिस इज योर, आप मान लो कि नेगेटिव एक्सट्रीम है, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सट्रीम है। आप इसको देखो, इफ इट इज मेकिंग सम थर्ड, फेज इज 30 डिग्री, अगर देख लो आप फेज क्या है, फेज इज इक्वल टू 30 डिग्री है, क्योंकि फेज क्या लेते हैं हम लोग विद द एक्स एक्सिस, राइट। फेज 30 है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज गोना बी cos of 60 which is a/2 1/2, तो 1/2 ऑफ a। आप बात फिर से बोल रहा हूं, देखो ये 630 डिग्री है, आप मानो तो इसको भी 30 मान लो ऐसे, है ना, ये 30 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोजेक्शन इज टेकिंग ऑन द y एक्सिस, ये 30 है विद x एक्सिस 30 डिग्री, ये कितना हो गया
a sin 30, which means it is going to be a by 2. तो अगर ऑब्जेक्ट इज एट a by 2, देन इसका जो फेज होगा, मैं फेज को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, अगर इसका फेज होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, which is पाई बाई 6. इस बात को आप समझ रहे हो ना, है ना, 30 डिग्री. लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, हमारा जो ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ वो वहां पे, ठीक है. लेट्स सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, नो, ये थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, विच इज पाई बाई 3. अगर ये 60 डिग्री है तो साइन 60 रूट 3 बाई 2. तो बच्चों अगर वो 60 डिग्री पे आता है, पाई बाई 3 पे आता है, तो हो जाएगा आपको रूट 3 अपॉन 2. और 45, चलो एक और 45 देख लेते हैं ना, 45 को गैप कर लेते हैं, उसको भी वी कैन कवर इट आउट. तो अगर 45 डिग्री है, इफ इट इज पाई बाई 4, कितना हो गया, a बाई रूट 2. और अगर वो 60 डिग्री पे आता है, विच इज पाई बाई 3, देन इट इज फेज, अगर 60 डिग्री है, देन द पोजिशन ऑन द in the SHM curve, SHM लाइन जो होगा रूट 3 अपॉन 2 फ्रॉम द मेन पोजिशन. और 90 पे आता है, here फेज कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री. इफ इट इज here the phase is 90 डिग्री और एम्पलीट्यूड a हो जाएगा. लाइकवाइज हम लेफ्ट में भी देखेंगे, है ना, वी कैन सी इन द लेफ्ट साइड आल्सो. तो ध्यान रखना इस बात को कि बॉडी यहां से स्टार्ट किया, ऊपर गया, वापस आया, और लेफ्ट में देखने के लिए, नेगेटिव में देखने के लिए बॉडी का जो मोशन होगा वो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में ही होगा, राइट, isn't it, ना. अगर सपोज कि द बॉडी इज हियर और इट इज मूविंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस शुड बी हियर. मान लो बच्चों कि एंगल हमारा 30 डिग्री है, किसके साथ, x के साथ, ये तुम्हारा पाई बाई 6 है. तो अगर ये 30 डिग्री है तो पोजीशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a अपॉन 2. बच्चों ये क्या था, a अपॉन 2 था, a था आपका. लाइकवाइज अगर 60 डिग्री है तो रूट 3 a अपॉन 2 आपको दिख रहा होगा. तो लाइक सेम थिंग, सिमिलर यहाँ पे भी है ना, सिमिलर यहाँ पे भी है. अगर आप देख लो, अगर वो a बाई 2 पे है तो इसका एंगल कितना हो गया, इस तरफ पाई बाई 6 है ना, तो उसको लिखेंगे माइनस पाई बाई 6 या फिर माइनस a बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. लाइकवाइज अगर इधर होता है, लेट्स सपोज माइनस ऑफ a अपॉन रूट 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो. इफ यू रिमेंबर दीज बेसिक वैल्यूज, आपका कहानी आसान हो जाएगा. अगर आप प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस को फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ एंगल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, आपको पता होना चाहिए. आपका कहानी क्विकली बनेगा, आपका जो प्रोसेस है वो क्विकली होगा. उसी तरह से अगर हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस में देख लें, अगर हम प्रोजेक्शन ऑन दी एक्स एक्सिस को देख लें, और इसके अगर मैं आपको एसएचएम के टर्म्स में आपको दिखा दूं, दिस इज योर मेन पोजीशन, दिस इज योर पॉजिटिव एक्सट्रीम, आई बिलीव इट इज कमिंग इन द कैमरा, दिस इज योर नेगेटिव एम्पलीट्यूड. मान लो इसी को यूज कर लेते हैं, अगर वो 30 डिग्री पे है, या फिर थोड़ा क्लीन कर लो, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना. तो भैया ये हट जाओ जी, चलिए, है ना, इसको थोड़ा हम देख लें, प्रोजेक्शन ऑन दी एक्स एक्सिस को. If I could just have a look on this projection on the x-axis clearly, हमारी कहानी थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना. So we're going to talk about the projection on the x-axis. Projection on x-axis. इसको हम देख रहे हैं, ठीक है. हमारा बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना. Now let's say इसका प्रोजेक्शन अपने को पता है कहाँ होता है, on the x-axis होता है बच्चों, है ना. तो let's suppose कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, it is at the mean position, ठीक है. मान लो कि ये कुछ एंगल बनाया, टिक 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 30 डिग्री. दिस एंगल इज पाई बाई 6, ये 30 डिग्री बना रहा है और बॉडी हमारा क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है. इफ इट इज 30 डिग्री, इसका जो प्रोजेक्शन होगा बच्चों, टिक 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 इधर होगा कुछ, है ना. तो बॉडी हैज मूव्ड ओवर हियर. तो अगर मान लो ये 30 डिग्री पे है, तो देखो कितना वैल्यू वो करेगा. इफ इट इज 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. हम इसको ऐसे समझते हैं, है ना, क्योंकि आप इस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो, यू वांट टू फाइंड दिस लेंथ, तो कहानी थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है. आप ऐसे भी करो, पाई बाई 6, तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी पाई बाई 6 हो जाएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल. तो साइन पाई बाई 6, साइन 30 1 बाई 2, साइन 30 इज गोइंग टू बी 1 बाई 2. यहां पे भी कितना था, 1 बाई 2 ही था. कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो बात को आप, है ना. अगर फेज इसका ए 30 डिग्री है, ये पोजीशन कितना हो जाएगा बच्चों, a बाई 2. या फिर आप ऐसे भी समझ लो, cos of this, cos of 60 a by 2 हाफ होता है cos 60. तो वही सेम कट टू सेम आपको मिल जाएगा, कॉपी कट, कुछ मुश्किल नहीं है. तो आपके हो जाएगा a by 2, किस पे, फेज विथ एंगल किसके साथ होना चाहिए, y एक्सिस के साथ होना चाहिए. द एंगल शुड बी विद द y एक्सिस. तो बच्चों कितना हो गया, पाई बाई 6 है, तो हमारा हाफ. वही सेम कहानी, पाई बाई 4 आएगा तो a बाई रूट 2 आ जाएगा ना, एंड सो ऑन. अगर हमारा पाई बाई 3 है तो रूट 3 a अपॉन 2 आ गया, और सेम, और इस तरफ से वही हमारा नेगेटिव a बाई 2 हो जाएगा, है ना.
नेगेटिव ए अपॉन रूट टू एंड नेगेटिव रूट थ्री ए अपॉन टू। कहानी वही है, कहानी कुछ अलग नहीं है, बस एंगल का ध्यान रखना कि किसके साथ हम बना रहे हैं। दूसरी बात, फ्रॉम हियर टू हियर अगर हमको बोल दे कि फेज उसका दे रखा है 60 डिग्री है ना, तो फेज 60 डिग्री मतलब कि ए भैया, ए वाला आपका ए एंगल फेज 60 डिग्री है। आप ध्यान रखने बातों को। दिस इज पाई बाई 3। इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, आप देख लो, आपका इसका प्रोजेक्शन कितना हो गया, रूट 3 अपॉन 2 हो गया ना, रूट 3 अपॉन 2। इतनी बात तो समझ में आ गई है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन गोइंग टुवर्ड्स राइट, बैक टू द मीन, गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, बैक टू द मीन, बस। ठीक है जी। अब चलो एक क्वेश्चन आई एम गोना टेक, और उसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, दोनों प्रोजेक्शन से बना के दिखाऊंगा। एंगल्स को एक रिलेटेबल आपके दिमाग में एक कंडीशन होना चाहिए, एक क्लैरिटी होना चाहिए कि कैसे इसको आप रिलेट कर रहे हो बच्चों। आई होप आप सभी इस बात को समझ पा रहे हो, है ना, जो हम कर रहे हैं। और नहीं तो लेट मी नो इफ आई कुड फाइंड कि मिस्टेक कहां पे हो रहा है, थोड़ा मैं उसको हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं जो कि हमने कल किया था, वी हैव डन यस्टरडे, उसी को मैं इससे आपको करके दिखाता हूं। ठीक है जी। एक सिंपल बात समझ लो, एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, है ना। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। मान लो कि हमने ऐसा दे रखा है, इट इज गिवन लाइक दिस, इट इज गिवन लाइक दिस कि दिस इज द मेन पोजीशन बच्चों, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है और आपका ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, और जो ऑब्जेक्ट कहीं है वो इस पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट इज हियर at root of 3a upon 2 and it is moving towards left। ये हमारा लेफ्टवर्ड जा रहा है। इसका इक्वेशन लिखो। इसमें 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। राइट द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और आपको पता है, यू नो दैट इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखने के लिए क्या चाहिए, फेज चाहिए, और ये रूट 3a/2 है। अभी मैंने आपको दिखाया कितना था, वो 60 डिग्री था, है ना, बट वो राइट जाते वक्त था, ये लेफ्ट आते वक्त है। तो हम थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे, इसको पहले समझेंगे। पहला क्वेश्चन कि राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेंगे हम लोग, टाइम टेकन टू रीच टू मेन पोजीशन, टाइम टेकन टू रीच द मेन पोजीशन। हम इसको ऐसे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको I'm gonna show you with both the projection x and y, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, और आपको ये समझना चाहिए कि दोनों आपको जानने लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया ठीक है, इसका हम पहले प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, हम इसको पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो फेजर डायग्राम है, अच्छा इसी डायग्राम को फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है जी। तो फेजर डायग्राम इसी को बोलते हैं बच्चों। तो हियर वी हैव, अब देख लो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां पे है, रूट 3a/2 पे, मतलब कि भैया इसका जो पोजीशन है रूट 3a/2, मतलब कहीं ना कहीं इधर है, पॉजिटिव में, राइट। तो दिस लेंथ इज रूट 3a/2। अच्छी बात है, ओके। तो सर यहाँ पे प्रोजेक्शन कहां से बन सकता है, या तो बॉडी जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, द बॉडी विच इज मेकिंग अ सर्कुलर मूवमेंट, दैट शुड बी हियर, और दैट कुड बी हियर। ध्यान से देखना है ना, द बॉडी विच इज मूविंग इस व्हेन आई से द बॉडी moving in the circular path, I'm referring to the body which is moving in this circular path। हम एसएचएम का बात करते हैं तो उसके फिर प्रोजेक्शन का बात करते हैं, ठीक है जी। Now, तो if the projection is here, which is at the distance of root 3a/2 from the mean position, तो obviously the object should be either here और यहाँ पे हो, तभी तो प्रोजेक्शन ऑन द y axis का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ध्यान दो कि भैया इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्शन है, which among these two, इस बात को आपको समझना चाहिए ना, तभी तो आपका फेज मिल रहा होगा ना। तो इस अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी इज हियर, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी इधर है ना। आपको पता है कि व्हेन आई टेक द प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस, बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो बॉडी का मूवमेंट जो आपको फिक्स्ड करना चाहिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो बॉडी इज मूविंग दिस वे और हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब देख लो, इस केस में बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। हम अगर इसको देख लें, इस पोजीशन को A मान लो, इस पोजीशन को B मान लो बच्चे। इफ आई कंसीडर द पोजीशन A, ध्यान से सुनना, गो स्लोली ओवर हियर। इफ आई लुक एट द पोजीशन A, आप थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम, बॉडी शुड बी हियर, इट मींस इट्स प्रोटेक्शन शुड बी हियर, which means it is going towards the extreme। अगर हम इसको देखें, आप समझ लो कि बॉडी जो है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएचएम, the body is going towards the extreme position। but इस केस को देखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम, बॉडी शुड बी हियर which is moving the SHM। तो इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, इसका प्रोजेक्शन इज हियर,
and you can see that it is going towards the mean position. Oh ho ho. In this case the object is going towards the extreme, in this case object is going towards the mean, और यहाँ पर दिख रहा है मेरे को भैया mean position की तरफ जा रहा है, means this is the position of the body, not this. तो जो इनिशियल फेज है, इट मींस द बॉडी एट टाइम t is equals to 0 is here, not there. ये बातें समझ में आ रही है? तो because we have got two positions of the path, body in the circular path, now we had to decide which of these two is going to be the correct initial path, initial position. Then I got to see it's going towards the mean position, and when I refer to this shadow, this object, this position, its shadow is moving towards the extreme, which is not the fact, and iska shadow is going towards the mean position, and that's what we have to relate over here. So this is the correct initial position. Now what do we need? We just need to find this bloody angle. That's all, बच्चों. ये हमको एंगल निकाल देना है, कहानी खत्म. वही तो फेज है भैया इसका, ना जी, वही तो इसका फेज है. तो कितना हो जाएगा आप देख लो. ये हो गया आपका, मान लो कि इनिशियल पोजीशन कहां मानते थे इसको हम, क्योंकि विथ इससे एंगल लेते हैं, राइट, इससे एंगल लेते हैं. दिस इज व्हाट एंगल इज टेकन फ्रॉम, और इसको एंगल ऐसे लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं. तो कितना इसका इनिशियल फेज हो गया आप देख लो इसको, पाई बाई 2, सॉरी ये लेंथ कितना है, √3/2, व्हिच मींस ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, दिस एंगल शुड बी हाउ मच, 30 डिग्री. दिस एंगल इज हाउ मच, π/3. तो फेज क्या हो गया, π/3 प्लस π/2, दैट इज योर इनिशियल फेज. कोई दिक्कत है इसमें? आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना 5-10 क्वेश्चंस, आप उसको ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल दिख जाएगा आपको ना. √3/2 है, ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, कॉस वाला एंगल है, और ये तुम्हारा π/2 हो गया. तो सॉल्व कर लो, और क्या देख लो, आपका हो गया 6, 2 और 3 है ना, 5/6 हो रहा है क्या, 5π/6 आपका हो जा रहा है. कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, π/2, ओहो π/6 होगा ना, सॉरी वही तो, माय बैड. दिस इज π/30 डिग्री ना, π/6, माय बैड. ओके ओके ओके, दिस इज गोना बी हाउ मच, 6 हो गया. दिस इज गोना बी π प्लस आपका 3π हो गया. सो दैट इज द फेज. वेल दैट्स गोना बी 4, दैट इज 2π/3. आप आंसर चेक करना, आपको इन द प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाया था और यही था. करेक्ट है ना, इतनी बात समझ में आ गई जी. तो इसका जो इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग, तो पहले का आंसर अपने को मिल गया ना, द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों मिल गया. राइट द इक्वेशन. फेज कितना हो गया, 2π/3. तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू a sin ωt प्लस 2π/3. कोई दिक्कत नहीं है ना. अब चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मीन पोजीशन. अच्छी बात है, यहां से इसको यहां आने में कितना फेज ट्रेवल करना पड़ेगा आप देख लो. तो वही तो टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज मैंने कल आपको पढ़ाया था, टाइम टेकन शुड बी व्हाट, चेंज इन द फेज इनटू t/2π, है ना. तो फेज कहां से कितना चेंज, हाउ मच फेज इज चेंजिंग. इसका इनिशियल फेज कितना हो गया बच्चों, यहां पे इनिशियल फेज है, और यहां से यहां आने में ऑब्वियसली ए वाला एंगल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि द मोमेंट इट रीचेस हियर, इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा मीन पोजीशन पे. तो यहां से यहां आने में, फ्रॉम हियर टू हियर, इट ओनली हैज टू कवर दिस मच ऑफ एंगल. अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, π/3. तो टाइम कितना मिल जाएगा बच्चों, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन शुड बी π/3 टाइम्स ऑफ t/2π, व्हिच मींस द टाइम टेकन टू रीच देयर शुड बी t/6. बल्ले बल्ले, बहुत ही मजे में कहानी हमारा सॉल्व हो गया. अब इसी को जल्दी से हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, और आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कंटिन्यू करोगे, क्योंकि इसके बाद आई एम गोना वर्क आउट विथ वन ऑफ द प्रोजेक्शन एक्स और वाई के साथ मैं काम करूंगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. क्योंकि आपको दोनों पता होने से यू माइट गेट कंफ्यूज कि कौन सा यूज करें. एक पे आप मास्टरी कर लो, कहानी खत्म, बट दूसरे के बारे में पता ऑब्वियसली यू शुड बी हैविंग. नाउ लेट अस ट्राई एंड ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑन द हमारा एक्स एक्सिस पे. देखो प्रोजेक्शन है ना. तो इनिशियल कहां था बच्चों, द बॉडी इनिशियली इज एट √3/a इन द पॉजिटिव साइड, मतलब कि भैया हमारा ऑब्जेक्ट तो यहां पे राइट साइड में है. तो इफ ऑब्जेक्ट इज हियर व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ √3a/2 फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये हमारा मेन पोजीशन है. This is your negative extreme, and this damn fellow is your positive, extreme. Position of the image, which is the body which is executing the SHM, वो हमारा इस पॉइंट पे है. और तो इसके कारण जो हमारा प्रोजेक्शन होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का which is moving the circular path, not the projection, sorry. If the projection is here, then the object which is moving in the circular path could be here. या तो वो इधर हो, यहां पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे हो. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज द पोजीशन बी, एंड वी नो दैट जब बॉडी का हम प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस लेते हैं, देन द बॉडी शुड बी मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो भैया या तो इसका ऐसे मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज होना चाहिए,
अब देखो, द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट। अब देख लो इसको, अगर इसका हम इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं प्रोजेक्शन, अगर हम मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो फिर क्या होगा देखो, इफ यू टेक इट्स प्रोजेक्शन आफ्टर सर्टेन टाइम हियर, इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा यहां पे, इट मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। इन दिस केस में बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, बॉडी मूविंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, जो कि गलत बात है। बॉडी कहां जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, राइट। तो भैया ये तो ना होगा, तो दिस इज ना इले। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू सी कि इधर क्या होगा, इन सर्टेन टाइम द बॉडी शुड बी हियर, और इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा हमारा यहाँ पे, जो विच इज एब्सोल्युटली इन द अकॉर्डेंस विथ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, वो जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, विच मीन्स ओ यस दिस इज द करेक्ट वन, हमारा करेक्ट ही हो गया। अब क्या चाहिए मेरे को, इसका चाहिए फेज। ऑब्वियसली फेज कैसे लेते हैं, विद द ऑन एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन में फेज लेते हैं वाई एक्सिस के साथ, राइट। तो भैया ए तो यहां पर हो गया, ऑल गुड। एंगल निकाल लो, दिस इज हाउ मच, √3/2, which means this angle should be how much, 30 डिग्री। ये जो एंगल आपका है मैं यहां लिख देता हूं, that should be π/6, 30 डिग्री एंगल होगा, ये बेसिक बात आपको पता है। नाउ फ्रॉम हियर देख लो एंगल कितना हो गया जी, π/2, आपका वहां से कितना हो गया, π/2 प्लस π/6। तो जो इनिशियल फेज कांस्टेंट होगा बच्चों, दैट शुड बी π/2 दिस एंगल प्लस ये एंगल π/3। देखो तो सेम ही आ जाएगा, राइट, इट्स गोना बी द सेम थिंग। सो इनिशियल फेज हो गया आपका 2π/3, which means the equation of this SHM should be x is equals to a sin omega t plus 2π/3 प्यारे बच्चों, और ये आपका आंसर हो गया। देखो दोनों में अपने को सेम ही आंसर मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग द सेम आंसर बिकॉज ऑब्वियसली द एसएचएम का इक्वेशन तो चेंज नहीं होगा, द ओनली वे द वे वी आर लुकिंग एट द थिंग्स वो चेंज हो गया। हम इसको एंगल x के साथ ले रहे थे, और यहां पे एंगल वी आर टेकिंग फ्रॉम द y एक्सिस। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग हैज चेंज्ड, नॉट एट ऑल, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब इसका टाइम निकाल लो, दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का था, टाइम, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू रीच फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो हमारा दिस इज द इनिशियल पोजीशन बच्चों, t इज इक्वल टू 0 पे है, टू गो टू द मीन पोजीशन, मतलब कि इसको यहां से यहां तक आना है। द बॉडी विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ हैज टू कम फ्रॉम हियर टू हियर, तो जाके इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, मीन पे बन जाएगा। तो कितना एंगल वो कवर कर रहा है, ऑब्वियसली 60 डिग्री कवर कर रहा है। It is covering of how much, 60 degree, which is π/3. So time should be how much, π/3, that is delta phi into t/2 pi। देखो कुल मिला के हमारे पास आंसर तो ऑब्वियसली वो आना ही था, है ना। तो कितना हो गया, पाई खत्म, t is gonna be t/6। तो 1/6 of the time period it will take to reach the mean position। बच्चों ये रहा आपका फेजर डायग्राम का कहानी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, और फिर इसमें आगे चलकर और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट सिचुएशंस व्हेन द बॉडीज, टू बॉडीज हम लोग देखेंगे, टू एसएचएम ऑफ टू बॉडीज, यू नो, टू बॉडीज का देखेंगे। उसमें दो क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। जे वाले का मैक्सिमम डिस्टेंस के काफी प्रति ज्यादा प्यार रहता है, तो उस पे क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा। बट अगर आप वो समझना चाहते हो, देन यू शुड बी वेरी 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 क्लियर विद दीस थिंग्स। आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंगल वैंगल जो भी है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, आप इसको पढ़ो। तो वी गोना स्टॉप टुडे हियर इटसेल्फ। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कुछ भी काम का वीडियो बना, अगर आपके कुछ भी हेल्प आया है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। बाय एवरीवन।